So yes, we'll be starting with similarity today. From the Frank textbook. It is the chapter number 13 there. Now in the class 9, you had done a chapter, congruency. You had studied this concept called congruency, where in congruency, in triangles, you had done that. So what was that congruency? Congruency means that if I say these are two triangles, it's triangle 1 and triangle 2. Let's say this triangle is named as ABC and this triangle is PQR. Okay. तो congruency क्या बताता था triangles chapter में? That if आपने कुछ tests पढ़े थे वहां पे, SSS, SAS, ASA, and there are other tests also. Okay. जिससे आप क्या प्रूव करते थे? Let's say AB is equal to PQ, BC is equal to QR, let's say angle B is equal to angle Q. ठीक है, इस तरह से आप कोई भी तीन पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स प्रूव करके you were come to the conclusion that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay, this is how you used to prove congruency. तो congruent का मतलब क्या था? Congruent का मतलब ये था that both the triangles are equal to each other. They are exactly equal. मतलब सेम है दोनों ट्राइंगल्स, इक्वल है एक दूसरे से. इक्वल का मतलब if AB is 5 सेंटीमीटर, BC is 6 सेंटीमीटर, AC is 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे PQ भी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर होगा. ओके, एकदम सेम वैल्यूज. इसे हम कहते थे कॉन्ग्रुएंसी, जहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है एक दूसरे से. ओके, इक्वल. बट अभी हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी. ओके, व्हाट वी आर स्टडीइंग नाउ, सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? Similarity means two things are not exactly equal, but they are similar to each other. Similar in what sense? See, similar होने में और same होने में बहुत फर्क होता है. Similar का मतलब क्या है? For example, if there is a big building, बड़ी सी बिल्डिंग है. ओके, इस बिल्डिंग को बनाने से पहले इसका एक मॉडल बनता है, एक प्रोटोटाइप बनता है. ठीक है, तो वो प्रोटोटाइप एक वही सेम साइज, वही डायमेंशंस, वैसे को सिर्फ छोटा कर देते हैं, तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं. ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि these two figures are similar to each other. बस साइज का डिफरेंस है. ओके, इसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी. मतलब जैसे समझो इसकी लेंथ है 2 और हाइट है 1, तो इसकी लेंथ होगी 200 और ब्रेथ होगी 100. समझ रहे हो? सिमिलर और सिमिलैरिटी में सिमिलर का मतलब क्या होता है? दैट ये है 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. ये मॉडल था, एक्चुअल में इट इज 200 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. ओके, these sides will always be in proportion. ओके, जैसे इनका रेशियो 2:1 का है, तो इसका भी रेशियो 2:1 का है. इसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी. ओके, जैसे एक कार है, तो पहले एक कार का मॉडल बनता है छोटा. ओके, एक छोटा मॉडल बनेगा,
एंड देन एक्चुअल में जो बड़ी कार होगी दैट विल बी मेड. ओके, तो ये जो बड़ा फिगर और जो छोटा फिगर होता है, दे आर कॉल्ड एज सिमिलर फिगर्स. ओके, दे आर सिमिलर फिगर्स. So ठीक है, now we have understood the word similarity. Now how to use it as a concept in the chapter. Okay, so if you have to prove two triangles as similar, let's say I have this one triangle and this other triangle. Okay, this is triangle ABC and this one is PQR. Okay, now like congruency, in similarity also there are tests. You have tests using which we prove triangles similar. Okay, now which are those tests? There are three tests: AA test, SAS test, and SSS test. ठीक है, मैंने यहाँ पे AA लिखा है, A A A नहीं लिखा है, क्यों? See, for example, this angle is 60 degrees. This angle is also 60 degrees. Okay, this angle is 50 degrees and this is also 50 degrees. So in the first triangle ABC and in the second triangle PQR, okay, in these two triangles, angle B is equal to angle Q and angle A is equal to angle P. You got two angles as equal. दो angle equal मिल गए आपको. So you can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. Now, how do I denote similar? By a wave like this. ये एक वेव बनाते हैं इसमें. इसको कहते हैं सिमिलर की साइन. ठीक है, what is this? So that means triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, मैंने कौन से टेस्ट से प्रूव किया? AA टेस्ट. ठीक है, ए टेस्ट हम नहीं बोलते उसे. क्यों नहीं बोलते? बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है. कैसे? अगर दो एंगल्स इक्वल है ट्राइंगल के तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180. ओके, ये 50 है, ये 60 है, तो ये 70 होगा, बिकॉज 50 + 60 + 70 इज 180. तो ये भी 70 होगा. ओके, तो ये लॉजिक ही है कि थर्ड एंगल इक्वली होगा, तो आपको सिर्फ दो ही एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं. ठीक है, थर्ड विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल. इसीलिए हम इसको ए टेस्ट कहते हैं. ठीक है, ट्रिपल ए करने की जरूरत नहीं है. ओनली टू एंगल्स, इफ टू एंगल्स आर सेम देन वी से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, सर बट ये वाला टेस्ट खाली ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ, आपको सिर्फ ट्रायंगल्स को ही प्रूफ करना है और कोई फिगर नहीं आएगा. अच्छा ओके. तब आई थॉट कि पेंटागन वैसा कुछ आया तो इसमें क्या 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 that- क्या रिपीट करो. अगर पेंटागन आया, इरेगुलर पेंटागन. नहीं नहीं और नहीं नहीं आएगा, और कोई फिगर नहीं आएगा. अच्छा ओके. ट्रायंगल ही आएगा बस. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही आपका चैप्टर है. एक्सक्यूज मी सर. सर अगर कोई थर्ड एंगल अगर अलग ही आ गया तो? कैसे आ सकता है अलग? किधर गए आप? म्यूट हो. सर मतलब अगर सर सर मतलब अगर अभी आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ए जो एंगल है वो 50 डिग्री और बी का एंगल. हेलो. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही है? व्हाट ही सेइंग? नहीं आ रही ना, मतलब मेरा तो सही है. अच्छा, ही इज ऑन म्यूट. मैं सिर्फ इतना सुना कि थर्ड एंगल क्या हो सकता है, ऐसा कुछ वो कह रहा था एंड देन लॉस्ट कनेक्शन. यस, कैन यू रिपीट? यस मंदन.
एनीवेज हाँ, सो थोड़ी थोड़ी मुझे उसकी बात समझ में आ रही थी दैट द थर्ड एंगल कुछ और हुआ तो थर्ड एंगल कुछ और हो ही नहीं सकता अगर दो एंगल सेम है तो, ठीक है, दो एंगल अगर सेम है तो थर्ड एंगल कुछ और हो ही नहीं सकता। ओके ठीक है, तो वी हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट टेस्ट। ओके, अब सेकंड टेस्ट पे ध्यान देते हैं, साइड्स के बारे में। नाउ इन सिमिलैरिटी वन थिंग यू कैन इजीली ऑब्जर्व हियर दैट साइड्स कभी सेम तो होगी ही नहीं, साइड्स इक्वल नहीं होगी बिकॉज एक फिगर छोटा है और एक फिगर बड़ा है। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 25 है, साइड तो इक्वल होगी ही नहीं कभी। ओके, तो अभी साइड्स को कैसे यूज करना है, तो इन सिमिलैरिटी वी डोंट यूज द साइड्स एज इट इज, वी यूज द रेशियोज ऑफ द साइड्स। ओके, यहाँ पे s साइड इक्वल होना इसका मतलब क्या है कि साइड्स का रेशियो इक्वल होना। व्हाट रेशियो? सी, इफ आई से दैट AB is 5 and PQ is 25, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, and for BC they have given that BC is 7 and QR is 35. Okay, now in this triangle and they have also given that B is equal to Q, ये given information है आपके क्वेश्चन में। Okay, so I will write here that in triangle ABC and triangle PQR, I will write that angle B equals angle Q. Okay, तो मैंने एक एंगल प्रूफ कर लिया, मेरा ये एक एंगल का काम हो गया। ओके, देन अब मुझे साइड्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो लिखूंगा। जैसे ये AB और PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग समझते हो ना, AB को आप PQ से कंपेयर करोगे। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो AB और PQ का रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ AB अपॉन PQ? इट इज 5/25, दैट इज 1/5। करेक्ट। देन दूसरी साइड्स कौन सी है? BC एंड QR, these are the corresponding sides। मैं इसका रेशियो निकालूंगा, BC अपॉन QR, क्या रेशियो मिल रहा है? 7/35, दैट इज 1/5। सो ये साइड का रेशियो भी 1/5 आया, BC अपॉन QR भी 1/5 आया, मीन्स दीज टू रेशियोज आर सेम। तो इसका मतलब अब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये दोनों साइड्स भी सेम है, मतलब इनका रेशियोज भी सेम है, रेशियोज सेम आने चाहिए। कंडीशन क्या है? दैट रेशियोज शुड कम सेम। ओके, तो दो साइड्स के रेशियो सेम आए और एक एंगल सेम आया, तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट these two triangles are similar to each other. So I will write like this: ABC is similar to triangle PQR. समझ में आ रहा है? आपको कुछ कंक्लूड नहीं करना, आपको ऐसा लिख के नहीं दिखाना है दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, अगर दोनों सेम है तो आपको समझ जाना है कि द रेशियोज आर इक्वल। Sir, if there would be another number than 5, then what would happen? हेलो, Hello. हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि सर अगर ये 5 के बदले कोई और नंबर होता था तो? हेलो, हेलो। एक्चुअली मेरे ईयरफोन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ यस, हाँ बोलो रीत। सर मैं पूछ रहा था कि अगर ये 5 के बदले कोई और नंबर होता था तो कैसे करते थे? कुछ और नंबर होगा तो हम लोग सामने देखेंगे ना कैसे करेंगे। ओके सर। देखेंगे ना, ऐसे तो कुछ भी नंबर हो सकता है, रेशियो सेम आना चाहिए बस, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके,
Sir, the sides always should be corresponding. हाँ, yes, corresponding. So So for मतलब this, अगर नहीं हुआ तो corresponding sides means if it's BC and PR it's given, Hmm. so we can't take them. Yes, you can take them, but you have to change the name of the triangle. That I'll explain you how it is. Okay, sir. so for SAS test, we have to prove that AB is equal to PQ. Okay, but here we are Equal taking. to नहीं, ratio. वो congruency में होता था equal to. Okay. हाँ, For this, भैया. we only need to prove that they both are in ratio with the other two sides. हाँ, their ratio and the other two sides का ratio is same. So they don't need to be equal. Like No. Equal कभी होंगे ही नहीं. कभी नहीं होंगे because एक फिगर छोटा और एक फिगर बड़ा होता है similarity में. तो they will never be equal. बस उनका ratio same होना चाहिए. so मतलब ऐसे भी नहीं कि AB upon BC is equal to PQ upon QR. नहीं. एक साइड AB फर्स्ट ट्रायंगल का और दूसरा साइड सेकंड ट्रायंगल का PQ. तो सर इससे तो ये प्रूविंग अच्छा ठीक है that do there should be two ratios that are Two ratios. That I- Minimum. Yes, minimum two ratios. Okay. Yes. सो इधर हम लिखेंगे ना कि बाय SAS टेस्ट. हाँ, लिखेंगे. मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, वो उसका कुछ टेंशन नहीं, सिर्फ आप लोग मीनिंग समझ लो एक टेस्ट का. ओके. और अगर ट्रिपल एस टेस्ट आया, ठीक है, ट्रिपल एस टेस्ट, तो मतलब ये एंगल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. जो थर्ड साइड होगी उसकी भी आपको वैल्यू दी होगी कुछ, लेट्स से दिस. तो आप थर्ड साइड का भी रेशियो लिखोगे, दैट AC अपॉन PR equals 8 upon 40, that is 1 upon 5. So all three sides, corresponding part of all three sides, you have found the ratio and you got as 1 upon 5 तीनों का. So that means by SSS test, the two triangles are similar. Okay. तीनों टेस्ट समझ में आए? कुछ टेस्ट में डाउट्स है? नहीं. ओके. सर इसके अलावा कोई टेस्ट है या ये तीन ही है? नहीं, बस ये ही. इनफैक्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है फर्स्ट AA टेस्ट. 90% सम्स तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे. ओके. अब एक और चीज, चलो ये तो आपको समझ में आ गया है. Let us move forward. Now, if there are two triangles, okay, and in the two triangles, they have given that angle A and angle P are equal, and angle C and angle R is equal. ये दिया हुआ है, ठीक है. तो अगर दो एंगल्स मुझे दिख रहा है तो I can write that angle P equals angle A equals angle P, angle C equals angle R, ठीक है. And therefore triangle ABC is similar to triangle PQR. ओके, ये मैंने लिख दिया. by AA test यहाँ पे लिखेंगे by AA test. Okay, the triangles are similar. मैंने similar prove कर दिया. Now tell me, once I have proved the triangle similar, तो क्या मैं ये conclude कर सकता हूँ कि इनकी जो sides है वो रेशियो में होगी? मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये साइड और ये साइड, फिर जो दूसरी साइड है इनकी, ठीक है, दिस साइड, this and this side, and the other sides, this one and this one, I can conclude that they will be in ratio. Okay, yes, I can conclude that they will be in ratio, क्योंकि मैंने उनको सिमिलर प्रूफ कर दिया है. अगर दो चीज सिमिलर है तो उनके एंगल्स हमेशा सेम होंगे और उनकी साइड्स हमेशा रेशियो में होगी, क्योंकि साइड्स रेशियो में होती है तो ही कोई भी चीज सिमिलर होती है. ओके, तो आप लोग ये बात ध्यान रखना है कि हमें पहले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है. In every sum, your first step will be to prove the triangle similar. Okay, once you have proved them similar, then you will write the ratios. ठीक है. अब ratios को कैसे लिखना है? तो कैसे लिखना है ध्यान से देखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ट्राइंगल का नाम वापस लिख रहा हूँ. ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. कैसे ratios लिखेंगे? Pay very careful attention.
first side of the first triangle and first side of the second triangle. ठीक है, क्या आएगा? AB upon PQ is equal to, okay, AB upon PQ is equal to second side of the first triangle and second side of the second triangle. ठीक है, उनके नाम से ही मिल जाता है रेशियो. पहले मैंने AB PQ लिया, फिर BC and QR, and this will be equal to, अब क्या बचा? थर्ड साइड कौन सी बची? AC and PR. AC and PR. So AC upon PR. एक बार मैंने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तो मैं ये लिख सकता हूँ कि these ratios are equal. ठीक है, ये क्यों लिखना पड़ता है? बिकॉज आपको क्वेश्चन में वो किसी तीन चीज का वैल्यू देंगे और आपको फोर्थ फाइंड करना होगा, तो ऐसा कुछ आपको फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए ये रेशियोज हमें काम आएंगे वहां पे. ओके, सो हमने दो चीजें सीखी अभी तक, हाउ टू प्रूव ट्राइंगल सिमिलर एंड देन हाउ टू यूज रेशियोज. ओके, ठीक है. Now one more thing. Let's say I have two triangles and they are given like this. Angle A is equal to angle P. Angle B is ऐसे मार्क करके दिया है equals angle R. देखो क्या दिया है, सीधा डिफरेंस. एंगल B को एंगल R से इक्वल दिया है. इक्वल तो दिया है इन द टू ट्राइंगल्स, दो चीजें इक्वल तो है, बट अगर आप उसको सीधा देखोगे तो एक एंगल दूसरी जगह पे है. तो इस केस में क्या करना है? यू विल राइट दैट एंगल A equals angle P. Okay, you know that angle A is equal to angle P. You will write angle B is equal to angle R. ये भी दोनों इक्वल दिया है. ठीक है, so by AA test triangles are similar, but while giving the names of the triangle you will be very careful. ट्राइंगल का नाम कैसे देते हैं? पहले फर्स्ट ट्राइंगल का नाम लिख दो. ठीक है, ABC. अब ध्यान से एक एक चीज देखो. दिस A एंगल इज इक्वल टू विच एंगल? A एंगल इज इक्वल टू P. ठीक है, तो पहला अल्फाबेट आएगा P. दिस B एंगल is equal to which angle? R. This B angle is equal to, sorry, R. So second alphabet आएगा R. And the third angle eventually जो C होगा वो automatically Q से equal होगा. तो last alphabet will be Q. Okay, मतलब जब आप ट्राइंगल्स के नाम लिखते हो, okay, तो you have to be very careful कि ये जो फर्स्ट एंगल है A ये P से सेम है, ये जो B है ये R से सेम है, और जो C है वो Q से सेम है. ओके, रेशियोज में बताऊंगा क्या है, उसको भूल जाओ. फिलहाल इस चीज पे ध्यान दो कि ट्राइंगल का नाम देना कितना इंपॉर्टेंट होता है. ओके, ट्राइंगल के नाम से आपको बहुत कुछ चीजें पता चलती है. ठीक है, एंड जनरली इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस द नेम ऑफ द ट्राइंगल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. They will give you that prove that ABC is similar to PRQ. They will only give you like that. ठीक है, most of the times. But if it is not given, you have to be careful and you have to name it carefully. ठीक है, ओके. और ये जनरली एंगल्स के लिए होता है, साइड्स के लिए नहीं होता है. Sir, if two triangles are similar, will the medians of the two triangles will be similar? Median? Yes, sir. Yes. Okay, sir. Thank you. If the two triangles are similar, the medians, the altitude, and the whatever else, everything will be similar to each other. But उसका कुछ use नहीं है. I guess there is only one somewhere we will use median.
दक्ष मैंने अभी बताया था दैट अगर दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है. Sir, I have a doubt. Sir, how will they give two similar angles? How will they show in a sum two similar angles? Like I have shown in the figure. So They will like mark they'll it. darken the. They will mark it in a some way. ऐसे दो lines दे देंगे, these two lines and these two lines like this. And sir, if it comes, if we don't write by chance in exam, they'll cut our marks What you don't write? in the order like you said A, B, C, and then it should Your be P, R, Q. entire sum will go wrong. Entire sum. Yes. Okay. Okay, sir. Thank you. सर हम लोग ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे तो हम लोग को कोई साइड इक्वल लेना था तो हम सीपी सीटी लिखते थे, तो क्या हम लोग को इधर सीपी एसटी लिखना है? नहीं, इधर कुछ भी नहीं लिखना है सर. ओके सर. ओके. सो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो चैप्टर का है वो अभी हमने समझ लिया है. ठीक है. एक और चीज़ है छोटी सी जो मुझे आपको बतानी है. उसका मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ. इफ दे आस्क यू टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, क्या पूछेंगे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल. मतलब इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स, लेट्स से ABC एंड ट्राइंगल PQR. ओके, आपने उसको सिमिलर प्रूफ कर दिया. ठीक है, आपने कर दिया. समझो A टेस्ट यूज किया, कुछ ना कुछ टेस्ट यूज करके आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया. ठीक है. आफ्टर प्रूविंग सिमिलर यू कैन also write that AB upon PQ equals BC upon QR equals AC upon PR. Okay. And let's say BC is 10, QR is 20. Okay. Just take मैं आपको example दे रहा हूँ. If they ask find the ratio of areas of triangle. Okay. या वो question में ऐसा देंगे. They will give you like this. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR. आपको बोलेंगे find this. तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? सो यू डोंट हैव टू यूज द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट वगैरह, उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है. यहाँ पे देयर इज अ डायरेक्ट डेरिवेशन करके एक सीधा सिंपल तरीका बता दिया. क्या तरीका है वो? आप इसमें से कोई भी एक रेशियो लो. ऑल थ्री रेशियोज आर सेम. ठीक है, कोई भी रेशियो ले सकते हो जिसकी भी वैल्यू आपको पता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी रेशियो, समझो मैंने लिया BC अपॉन QR बिकॉज ऑल थ्री रेशियोज आर सेम. ठीक है, आपको वो रेशियो लिखना है एंड उसका स्क्वायर करना है. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, तो आप यहाँ पे BC 10 है, QR 20 है, द होल स्क्वायर. सो इट इज 1/2 द होल स्क्वायर. सो योर आंसर इज 1/4. ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल आया तो उसे कैसे फाइंड करते हैं? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसको स्क्वायर करेंगे. ओके, दिस इज हाउ यू डू इट. एनी डाउट्स हियर? अदरवाइज वी कैन स्टार्ट. एंड देयर इज अ डेरिवेशन बिहाइंड दिस, कैसा क्यों करते हैं. ठीक है, बट क्या है ना कि वो डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ. ओके, ठीक है. Come to the exercise 13A.
Just someone confirm to me, there are 23 questions in the exercise, right? In the new textbook also. Now, before starting the exercise, the sums, parallel lines. How parallel lines are useful in this chapter, we will see that. Okay. See, for example, if I am given a triangle like this, okay, and they have joined this line. So this is ABC and PQ. अब पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज मुझे बताना है आपको. So if these two lines are parallel, ठीक है, ये दो लाइंस let's say L and M are parallel, ये दोनों एंगल सेम होंगे. These two angles will be same. Okay. What are these angles called? This angle and this angle. What are these angles called? These angles are called as alternate angles. Okay, हम क्या कहते हैं उन्हें? Alternate angles. Okay, जिसको नहीं पता होगा, alternate angles और interior alternate angles. ठीक है, आप वो भी बोल सकते हो. ठीक है, means alternate angles क्या होता है? Alternate angles are where Z is formed. ठीक है, Z form होता है. In short, they are called as alternate angles. Okay, reverse भी हो सकता है, ऐसा Z भी हो सकता है. Both ways they are called as alternate angles. Okay, then this and this angle is same. What are these called? इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस में ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं. What are these called? No अक्ष, no heat, directly opposite. Vertically opposite angles. They are called as vertically opposite angles. Vertically opposite angles. ये दोनों angles एक दूसरे के opposite है. They are called as vertically opposite angles. Okay. और vertically opposite angles के लिए किसी भी चीज का parallel होना जरूरी नहीं है. जैसे alternate के लिए parallel होना चाहिए. Vertical opposite के लिए parallel नहीं, खाली बस cross बनना चाहिए. ऐसा cross बना means these two angles are same. ठीक है, या these two angles are same, जो भी आपका useful होगा. Okay, so you should know what is vertically opposite angles. Okay. Next is these two angles are same. ऊपर नीचे वाले angles. Okay, they are same. What are these called? इसको क्या कहते हैं? No heat. Yes, Aliabbas correct. You correct. No heat. Zia correct. These are called as corresponding angles. इसको कहते हैं corresponding angles, जो ऊपर नीचे होते हैं, सेम लाइन में बनते हैं. क्या कहते हैं इसे? They are called as corresponding angles. Okay, ये सब आपने किया है 8th standard and 9th standard में, but I guess you have forgotten everything. ठीक है? These are called as corresponding angles. If you want, you can draw this in your books. ये वाला एक फिगर ड्रॉ कर दो, ये लिख दो, ये ड्रॉ कर दो.
बिकॉज ये अभी हर सम में आने वाला है. In this triangle ABC, see this angle and this angle. अगर ये lines parallel दी है, कौन सी? PQ and BC. If these two lines are given parallel, then I can say that angle P and angle B are equal, and the reason will be corresponding angles. Reason will be corresponding angles. Okay, so I hope corresponding angles, vertically opposite angles. Yes, corresponding के लिए, alternate के लिए parallel line होना जरूरी है. ठीक है, सिर्फ vertically opposite के लिए अगर parallel नहीं भी होगा तो भी चलेगा. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग इंटीरियर एंगल आंसर दे रहे थे किसी चीज के लिए. इंटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी होती है? आई टेल यू. इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों. और उनकी प्रॉपर्टी ये होती है दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180. इंटीरियर एंगल्स कभी इक्वल नहीं होते. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180. ठीक है, ये भी इंटीरियर हो सकता है इस साइड में, ये और ये, तो इनका भी सम 180 होगा. ठीक है, जैसे अगर ये A है और ये B है तो A प्लस B इज 180. दैट इज इंटीरियर एंगल्स. ओके, उसका यूज नहीं होता वैसे चैप्टर में. देन देयर इज वन मोर, लीनियर पेयर. वो भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ज्यादा यूज नहीं होगा चैप्टर में, बट स्टिल यू शुड नो. लीनियर पेयर मतलब एक अगर स्ट्रेट लाइन है, इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180. लीनियर पेयर इज 180. Okay. Hello, sir. Hello. Yes. Sir, in this chapter, will we have exterior alternate angles ka property? Wait at your pass. Whatever is there, I'll teach you. Don't worry. If it is there, I'll teach you. Don't let your mind distract here and there. So, जो भी properties यहाँ पे मैंने लिखवाई है, these will be useful in the chapter. Okay. Now we can start with the exercise. So, ज़्यादा नहीं करेंगे आज. We will do only a few sums. So come to exercise 13A. First, now in the first question, they don't want you to solve. They just want you to identify. सिर्फ नाम बताओ कि कौन से टेस्ट की वजह से ट्राइंगल्स इक्वल है. तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. सो इसका जो सब क्वेश्चन 1 है उसको मैं जरा पेंडिंग रखता हूँ. ठीक है, सब क्वेश्चन 2 लेता हूँ पहले. ओके, सब क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? दे हैव मेड अ ट्राइंगल लाइक दिस. ठीक है, and this is A, P, Q, B, C, and PQ is parallel to BC. They have given. Okay, and if you read the question, name the test by which the following pairs of 1 to 8 of the triangles APQ and ABC. मतलब आपको प्रूव क्या करना है? नहीं, आपको मतलब प्रूव नहीं, आपको टेस्ट बताना है by which APQ and ABC are similar. तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये आपको बताना है. ठीक है, सॉल्व वॉल्व नहीं करना, इसी आपके प्रैक्टिस के लिए है. ओके, तो अभी देखते हैं कौन से टेस्ट से सिमिलर हो सकता है. ओके, सो इफ यू सी दीस टू, APQ मतलब ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, APQ एंड ABC मींस दिस फुल ट्राइंगल. ओके, APQ एंड ABC एंड दे आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरलैपिंग से, हमें सिर्फ फोकस करना है दैट एंगल सेम है कि नहीं. ओके, तो I can easily see
दैट ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है APQ, ये जो ट्राइंगल है APQ, इन दिस एंगल P और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, इन दिस एंगल B आर इक्वल. Why are they equal? Why is this angle P and angle B equal? What is the reason for this? Just now we had done, it is corresponding angles, ऊपर नीचे corresponding angles. Okay, why are they equal? Corresponding angles. Very good. ठीक है. अब जैसे ये दोनों सेम है वैसे ही ये और ये भी सेम होगा. Corresponding angles. तो हो गया, P और B सेम है, Q and C सेम है, दो एंगल्स मिल गए. सो बाय AA टेस्ट द ट्राइंगल इज सिमिलर. ठीक है, हमने प्रूव तो कर लिया. इसमें आप एक और चीज कर सकते थे. ठीक है, आप क्या कर सकते थे, आप इस एंगल A को भी यूज कर सकते थे. कैसे? ये जो एंगल A है दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. ओके, ये एंगल A जो है ये छोटे ट्राइंगल का भी पार्ट है. ओके, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द बिगर ट्राइंगल आल्सो. वो कॉमन है दोनों में, तो अगर कॉमन है तो वो सेम ही होगा. ओके, तो यू कुड हैव रिटन हियर दैट एंगल A इज कॉमन. ठीक है, और आप समझो इसको इग्नोर कर लेते और आप इन दोनों को यूज करते तो भी आपका AA टेस्ट बन जाता. ओके, तो आपको ये कॉमन वाला पार्ट भी पता होना चाहिए दैट द एंगल इज कॉमन. ओके, यस खुश. सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि दोनों का बेस इक्वल है PQ और BC. नहीं नहीं है, क्यों इक्वल है? अच्छा हाँ. एक छोटा है एक बड़ा है. इक्वल तो कभी होगा ही नहीं. मैंने आपको कहा है सिमिलैरिटी में कभी साइड्स इक्वल नहीं होती. ओके, और सर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम से कर सकते हैं हम प्रूफ? नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? सबसे पहली बात तो वो यूज ही नहीं होगा चैप्टर में, फिर भी मैं बताता हूँ. मिड पॉइंट थ्योरम का कंडीशन क्या है? दैट P एंड Q शुड बी द मिड पॉइंट्स. बट यहाँ पे Yes. हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि P और Q मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज ही नहीं कर सकते. ओके, ओके सर. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कंक्लूड कर दिया है कि ये जो फर्स्ट वाला, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इट इज सिमिलर बाय AA टेस्ट. ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. दिस इज हाउ द ट्रायंगल इज मेड. ये कुछ ऐसे बनाया है, PQACP. ओके, in the exam for similarity, in the exam मुझे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि do we need to draw the diagram. See, अब if you are making, ये common rule है, आप एक याद रखो, that if you are making any changes in the diagram, if you are doing any construction or anything, then you have to draw the diagram. Otherwise you don't need to draw the diagram. ठीक है, आप बिना ड्रॉ करके भी सम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, now they have given that the PQ and CB are parallel to each other. Okay, so अभी ये triangle, these two triangles will be similar by which test? Which angles are similar here? By AA test, yes. तो angles कौन से लेंगे? I will take P and B. ये Z बन रहा है ऐसा Z. See, you can see ना, ये Z बन रहा है ऐसे. So P और B सेम होगा. ठीक है, और ये ऐसा भी Z बन रहा है ऐसे. So Q and C will also be same. Okay, so ये जो एंगल है Q and ये जो एंगल है C, they will also be same. Okay, जो थर्ड एंगल है आप उसको भी यूज कर सकते थे. ठीक है, कौन सा? A को भी यूज कर सकते थे, बट उसके लिए आप क्या रीजन देते फॉर A? करेक्ट खुश, नो रॉन्ग मोइज. A के लिए क्या रीजन देते और कैसे मार्क करते उसको? वेरी गुड असीम, निष्का करेक्ट, श्लोक रॉन्ग, ईशा रॉन्ग. करेक्ट, नाउ मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर. ये A कॉमन एंगल नहीं है. A इज नॉट कॉमन एंगल.
कॉमन एंगल का मतलब क्या होता है कि वो एंगल दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो जो लोअर ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, इसका एंगल ए है ये, ठीक है, इसका एंगल क्या है ये। और जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला, इसका एंगल ये ऊपर है। तो एक का एंगल नीचे है और एक एंगल ऊपर है, तो हाउ कैन दे बी कॉमन? वो कॉमन नहीं है, ऊपर का एंगल अलग है, नीचे का एंगल अलग है, ठीक है, तो उसको कॉमन नहीं बोल सकते। दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज हमने देखा है दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बिकॉज क्रॉस बन रहा है ना ऐसे, तो मैंने बताया था क्रॉस में कि इन एंगल्स को क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, कॉमन नहीं लिखना है। अगर आपने कॉमन लिख दिया एक को तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। कॉमन नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ अल्फाबेट कॉमन होने से एंगल कॉमन नहीं हो जाता, ठीक है। सो दिस इज अगेन ए टेस्ट, ठीक है। सर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो उसका रीजन अल्टरनेट एंगल्स हो सकता है। बी और पी, सो पी और बी, एंगल हाँ बी हाँ, एंड ऑल्टरनेट ही है, यस यस। बी, बी और पी, क्यू एंड सी, दे आर ऑल्टरनेट। Sir, Q and B are corresponding नो angles or no? नो नो नो, Thank you. ठीक है। हाँ, वी नीड ओनली टू एंगल्स, ठीक है, बट सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि थर्ड एंगल भी कैसे होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये तो अभी एंगल्स वाले थे, तो एंगल्स वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया है अभी। ओके, सो मैं एक सिक्स्थ वाला भी कर लेता हूँ, वो भी एंगल के बेसिस पे है। सो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। जैसे डायग्राम है 90 डिग्री, सी क्यू ए बी पी। थिंक अबाउट दिस फिगर। I can see many answers coming. एक चीज सबने राइट बोली है, दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, बोथ आर 90 डिग्रीज। वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दैट इज करेक्ट। अब कुछ लोग कह रहे हैं दैट सी और पी ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है, क्योंकि आपको लाइंस पैरेलल दिया ही नहीं है। दे हैव नॉट गिवन दैट दीस टू लाइंस आर पैरेलल, और वो दिख भी रहा है कि आपको पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स की बात ही नहीं आती। ओके, यस, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन दोनों एंगल्स की वजह से, इन दोनों एंगल्स की वजह से ए टेस्ट विल बी द आंसर। ओके, इन दोनों की वजह से। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आप इस एंगल को नाम कैसे करोगे? इन दोनों एंगल को यू हैव टू नेम द एंगल। आप खाली ए नहीं लिख सकते, बिकॉज ए तो दोनों का नाम हो सकता है, तो आपको नाम कैसे लिखना है? दिस एंगल इन द फर्स्ट ट्राइंगल इज सी ए बी and the second triangle it is QAP. These two are equal and the reason will be vertically opposite angles. You have to write full form. Okay, समझ रहे हैं आप? QAP को PAQ भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, C और Q 90 है, उसका आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो गिवन डेटा है, ये दिया हुआ है, तो इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है कुछ।
ओके, बी और पी के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी स्टार्टिंग में, तो हम उनको यूज नहीं कर सकते. ओके, समझ रहे हैं? दिस इज ऑल्सो ए टेस्ट. ओके, ठीक है, डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे. सो लेट्स डू द 7th सब क्वेश्चन. सो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स प्रॉपरली. ओके, कौन से दो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ? तो एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, एंड दिस इज द अदर ट्राइंगल. These are the two triangles we are talking about. Okay, now give me your answers. ओके, आई हैव रेड योर आंसर्स. मोस्टली सबने सही दिया है, खाली एक छोड़ के. ठीक है, यस, आपने बोला है दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दे आर 90. ओके, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है. मैं जरा इनको इसको इरेज कर देता हूँ. ओके, सो यस, वेरी वेल, आई कैन सी हियर दैट ये ऑल्टरनेट बन रहा है, ऐसे z बन रहा है. So this angle and this angle are alternate angles. Okay. रीत कॉमन साइड ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया. अब कुछ लोगों ने बोला है कि C और F भी सेम है और उसके लिए ऑल्टरनेट एंगल्स वर्ड यूज किया है. नहीं, C और F सेम नहीं है. शुरू में तो हमें नहीं पता है C और F सेम है, बिकॉज कोई Z नहीं बन रहा है यहाँ पे. C और F के साथ में Z कैसे बना हुआ है? ऐसे Z फॉर्म ही नहीं हो सकता यहाँ पे. ये लाइन तो ब्रेक हो रही है यहाँ पे बीच में. तो C और F को आप सेम नहीं बोल सकते. You don't have any data initially that C and F is same. समझ रहे? ये alternate angles नहीं हो रहा है, because Z जैसे A और E के लिए I can easily make a Z here like this, and these two are same using the parallel lines, but I cannot do the same for C and F. ऐसे यहाँ पे कैसे भी तरीके से मैं कुछ लाइन नहीं बना सकता ऐसे. ठीक है, B और D हमने 90 लिख दिया है, and A और E हमने alternate लिख दिया. So based on these two, the triangles are similar. A test. Okay. चलो, वेरी गुड. अब हम आते हैं, अगर एंगल्स नहीं है तो साइड्स के बेसिस पे कैसे करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन दैट. सो क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1. ओके, so question 1, sub question 1, I'll draw the diagram here.
ये लाइन कुछ ऐसे बनाई है, P and Q and B and C is here. A, okay, this is 2, 3, 5.5 and 2. Okay. Now in the question they have said that prove APQ is similar to ABC. Okay, I have to prove that APQ is similar to ABC. Now they have not given me that PQ is parallel to BC. ये नहीं दिया है और आपको दिख भी रहा है कि वो नहीं है। एक लाइन किस तरफ जा रही है और एक लाइन किस तरफ जा रही है। ठीक है, ये लाइन ऊपर जा रही है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे जा रही है। देयर इज नो चांसेस दैट दे आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल नहीं है तो आई कैन नॉट यूज इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी यूज नहीं कर सकता मैं क्योंकि पैरेलल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे साइड्स की वैल्यू दी है। सो साइड्स की वैल्यू को यूज कैसे करते हैं, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो यहाँ पे AP एंड AB का रेशियो पहले, AP upon AB. So what is AP? AP I can see as 2 and AB मतलब ये पूरा is 3 plus 2 5, correct? Then दूसरा रेशियो मैं किसका लूंगा, PQ and BC. But do I know the values of PQ and BC? डायग्राम में वैल्यूज है नहीं है PQ और BC की, तो उसको यूज करके कोई फायदा नहीं है, लिख के भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लास्ट AQ एंड AC, AQ एंड AC इसका रेशियो लिखते हैं, AQ एंड AC. What is AQ? AQ is 3. What is AC? This full side is 2 plus 5.5. 2 plus 5.5 means 7.5. Okay, 7.5. पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करूं तो इट विल बिकम 30/75. ओके, 15 2s are 15 5s are, so this became 2/5. ओके, सो ये एक रेशियो और ये दूसरा रेशियो सेम मिला मुझे, 2 ratios are same. ओके, is there any angle in the two triangles equal? कोई एक एंगल इक्वल है क्या? Yes, angle A is the common angle here, क्योंकि वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और ये बड़े ट्रायंगल का भी पार्ट है। एंगल A is common, तो एक एंगल तो है मेरे पास, that angle A is common angle. ठीक है, तो मतलब एक एंगल और दो साइड्स के रेशियो सेम है। सो टेस्ट क्या आएगा यहाँ पे, SAS टेस्ट। ठीक है, सी नाउ आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, सम कैसे हो रहा है, एंड दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। अगर आपको ये चीज समझ गई कि मुझे इनको सिमिलर प्रूफ कैसे करना है, तो उसके आगे का पार्ट इजी है, आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि वो कौन से साइड्स का रेशियो लेना है? नाम में आपको देखना है कि AP और AB, PQ एंड BC, वैसे। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन 4। Rayan, AC is 5.5 plus 2, 7.5. ठीक है, ये है अगेन माय ट्रायंगल्स आर APQ एंड ABC. ठीक है,
सो एक चीज तो मुझे यहाँ पे पता है दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम. ये क्या है? एंगल PAQ is equal to angle BAC. Reason being vertically opposite angles. अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, अब देखते हैं साइड्स के बारे में. सो AP एंड AB का रेशियो लिखता हूँ मैं. AP एंड AB रेशियो. सो AP इज 1, ओके, एंड AB इज 4. सो रेशियो मिल गया 1/4. ओके, अच्छा, बिफोर दैट can I say that angle P and angle C are equal? Can I say that? I cannot say that. Why? Because lines parallel दिया ही नहीं है. अगर पैरेलल लाइंस नहीं है, अगर यहाँ पे ऐसे एरोज नहीं बनाए हैं या क्वेश्चन में नहीं बोला है कि पैरेलल है, तो आई कैन नॉट से दैट अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहा है. ठीक है, इसीलिए उन्होंने वैल्यूज दी है आपको. ठीक है, नेक्स्ट PQ एंड BC साइड लेके फायदा नहीं है बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यूज ऑफ PQ एंड BC. ओके, AQ एंड AC ये लेते हैं. AQ and AC. So AQ is given as 1.25 and AC is 5. So if you shift the points, ये होगा 125/500. So 1/4 ही आएगा eventually. So one ratio and the other ratio is same और एक angle भी same मिल गया है. So I can say that by SAS test the triangles are similar. Okay. Now the fifth sub question, I want you to do it yourself. Fifth question खुद से करो. It is same as the fourth one. You will get the answer as SAS only. Okay, you will get the ratios of both as 1/4, I think. So दोनों का ratio same मिलेगा and triangles will be equal, similar. Okay. Okay. अभी सिर्फ आज एक ही सम करेंगे. We will do only one sum, question number 2. Okay, that would be the last sum for today. Then आगे we will understand properly सब एक चीज और धीरे धीरे करेंगे. ठीक है, आज आपने कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है, बेसिक्स पूरा समझ लिया है. तो लेट्स सी हाउ द सम कम्स इन एग्जाम. ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, दिस इज हाउ द सम कम्स इन एग्जाम. ओके, let me draw the diagram here for you. So P and Q, this is A, BC. PQ is parallel to BC.
दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। और क्या दिया है, AP रेशियो PB is 2:3. AP रेशियो PB is 2:3. ओके, तो AP कहाँ है, दिस इज AP, तो ये हो गया 2, एंड PB इज दिस, सो दिस इज 3. ओके, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। सो पहले पार्ट में मुझे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. सो फर्स्टली डायरेक्ट सम सॉल्व नहीं कर सकते, यू हैव टू फर्स्ट प्रूव द ट्राइंगल्स सिमिलर. ओके, तो आई विल राइट इन ट्राइंगल APQ and triangle ABC. See the steps I am doing. You have to write each and every steps. Okay. In triangle APQ and ABC. Now, how will I prove these two triangles equal? APQ और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, अभी हमने किया था. सिंपली कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, और A को कॉमन ले लेंगे, या फिर आप ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे. ओके, सो आई विल राइट हियर एंगल APQ, सिंगल अल्फाबेट्स मत लिखना, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, एंड एंगल A इज कॉमन एंगल, ठीक है. सो आई विल राइट बाय AA test, by AA test, triangle APQ is similar to triangle ABC. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू प्रूव द ट्राइंगल्स सिमिलर, ठीक है, अच्छे से लिखना है each and everything. Now once you have written this, we can write the ratio here. I can write the ratio that AP upon AB equals PQ upon BC equals AQ upon AC. ठीक है. If you want to write a reason for this, अगर reason लिखना है तो you can write ratio of corresponding sides are equal. Ratio of corresponding sides are equal. ठीक है, ये लिख दिया मैंने. Now if you see the first sub question, they are saying length of PQ if BC is 7.5. They have given that BC is 7.5. Find PQ. तो यहाँ पे take these first two ratio, ये दोनों रेशियो में, do you know the value of AP? AP upon AB पता है आपको क्या है? See, AP is 2 and AB मतलब ये पूरा, it will be 2 plus 3. करेक्ट. AP की जगह पे मैं 2 लिखूंगा और AB की जगह पे it will be 2 plus 3. Okay. PQ I don't know and BC is given as 7.5. Correct. See how I have written the values. देखो मैंने 2/3 नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा 2/3? क्योंकि मुझे AP upon AB चाहिए. AB मतलब ये पूरी साइड, तो 2 plus 3 हो जाएगा, 5 आ जाएगा. ठीक है. Now I will solve this. 2/5 equals PQ upon 7.5. ठीक है. You cross multiply here. You will get the answer of PQ as 5 1 15 2 3. आपको PQ मिलेगा 3 सेंटीमीटर्स. Okay, the first part of the question is done. ठीक है. Second part में यहाँ पे करता हूँ. I hope all of you have copied it. Second part, they are saying find the ratio of area of triangle APQ upon area of triangle ABC. What did I tell you about the areas? How to find the ratio of areas?
by taking the square of the corresponding side. ये जो रेशियो है corresponding sides के उनका स्क्वायर, तो आप कोई भी रेशियो यूज करो, ठीक है। आप AP अपॉन AB कर सकते हो, दैट इज 2/5 आपको पता है। PQ अपॉन BC भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई यूज AP अपॉन AB, the whole square. Okay, so AP is 2, AB is 5, the whole square, that is 4/25. This is my answer for area of triangle APQ upon area of triangle ABC. Any doubts till here? Yes, Moise. Sir, sign for the area. Sign. Yes, Sign sir. कौन सी sign means? Sir, for area. Sign कैसे आएगी? Sign positive. नहीं सर, अपन सेंटीमीटर लगते ना, सेंटीमीटर स्क्वायर सर. Unit. यस सर, यूनिट. हाँ, यूनिट यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ रेशियो. रेशियो में यूनिट नहीं आता, क्योंकि ऊपर का जो यूनिट समझो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाता है रेशियो. ओके, ठीक है. तो दिस पार्ट इज अंडरस्टूड. ओके, नाउ आई विल जस्ट इरेज दिस. और अब हमें नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन. ओके, लास्ट में मुझे क्या पूछा है थर्ड पार्ट में? फाइंड द एरिया, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ PBCQ. PBCQ, ठीक है. मतलब किसका एरिया पूछा है? I'll mark and show you. APQ का, और इसको कंपेयर करना है PBCQ के साथ, ठीक है. अब ये कैसे करेंगे? सो ये बहुत इजीली हो जाता है. कैसे? यू नो दैट, आपको एक चीज पता है, आपने पहले फाइंड की अभी, दैट APQ अपॉन ABC, इनका एरिया का रेशियो आपने ऑलरेडी फाइंड किया है. कितना मिला था आपको? यहाँ नीचे लिखा है हमने 4/25. करेक्ट. मतलब ये जो ट्राइंगल है APQ, ओके, 4/25 मिला था मुझे. ओके, सो ये जो ट्राइंगल है APQ, इसका एरिया क्या है? 4. करेक्ट. एंड दिस ट्राइंगल ABC, ये जो पूरा ट्राइंगल है, इस फुल ट्राइंगल का फुल ट्राइंगल का एरिया क्या है? 25. ओके, so can you tell me what will be the area of this part? Yes, very good, very good. Everyone has given the correct answer. कि अगर ये पार्ट 4 है और पूरा 25 है, तो ये क्या होगा? This part here, which is inside, this will be 25 minus 4, that is 21. ओके, तो बस यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है. ओके, यही चीज आपको यहाँ पे करनी है. APQ का एरिया क्या है? APQ का एरिया इज 4 एंड PBCQ का एरिया क्या है? PBCQ का एरिया इज 25 minus 4. So your final answer will be 4/21. और यहाँ पे कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं करना, बिकॉज ये ऑलरेडी आप एरियाज को यूज कर रहे हो, तो इसमें स्क्वायर नहीं करना है. बस दिस इज योर आंसर. Okay, that's it for today. If you have any doubts, you can ask me. Sir, I didn't understand how did you get the area of this trapezium or whatever shape it is as 21? See, what is the area of this triangle? It is 4 APQ. So how?
It is given, see na here ratio, APQ upon ABC ratio. Yes, sir. APQ upon ABC is 4 upon 25. Yes, sir. Means APQ corresponds to 4. Yes, sir. So APQ is 4 and ABC is 25. ABC Yes, sir. means the full triangle is 25. Yes, sir. If the full triangle is 25 and APQ is 4, so you will subtract and this will be 21. 21. Sir, you minus ABC and APQ, Yes, ABC and APQ. and then we get PQBC. Okay, sir, understood. Thank you. सर आप मुझे सिर्फ एक बार बताओगे कि वर्टिकल नहीं इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स मतलब मैं आपको इसी ट्रायंगल में बताता हूँ. इंटीरियर एंगल मींस दिस, ये है इंटीरियर. मतलब जो दो पैरेलल लाइंस होती है उनके अंदर के दोनों एंगल्स, इनका टोटल होता है 180. यहाँ पे भी हो Okay, सकता sir. है. दीज आर आल्सो इंटीरियर. ओके सर. एंड सर जब ये अगर पैरेलल नहीं हुआ तो सिर्फ हाँ. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यूज होगा ना, बाकी कुछ यूज नहीं होगा ना? बाकी कुछ यूज नहीं कर सकते, मतलब करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट यूज नहीं कर सकते. ओके सर, थैंक यू.